Today we will study about Python. Python is a flexible, dynamic and powerful language which can be used in many ways. So here we will use IDLE, Integrated Development Learning Environment, which comes with Python. Okay, this kind of environment comes with Python. When you will install Python on your system, you will write programs in IDLE. IDLE, full form of IDLE is Integrated Development Learning Environment, which allows user to edit, run, browse and debug a Python program. Okay, and the interactive interpreter of Python is called Python shell. So before start with Python, we will go through a few features of Python. Python is a case sensitive language. Case sensitive means if you have written something in capital, so that will be treated different. Like if I am writing a equal to 3 and capital A equal to 4, and if I am writing x equal to a plus a, so this a is different and this a is different because Python is case sensitive. इसमें छोटा बड़ा जो भी लिखोगे आप वो दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे पाइथन से. Another is print function. Print function in Python is used to display anything on the screen. Print काम आता है अगर आपने कुछ भी यूज़ करना हो, डिस्प्ले करना है. वट एवर यू विल राइट इन डबल कोट्स विल बी डिस्प्लेड एज इट इज़ ऑन द स्क्रीन. ओके, प्रिंट के साथ we use two parameters, separator as well as tab. Like if I'm displaying hello, hi, then output will be hello space hi. And if I want output to be like hello, then I want कि उन दोनों के बीच में स्टार आए, then I will use separator equal to star. Means I am saying Python that while displaying instead of space put star, so output will be hello star hi. So sep is for separator between words in the output. Same way, when I suppose I am displaying print hello and after that I again write print world, तो ये इनकी आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट विल बी फर्स्ट हेलो विल बी डिस्प्लेड, देन इन नेक्स्ट लाइन वर्ल्ड विल बी डिस्प्लेड. आई वांट कि हेलो के साथ वर्ल्ड यहीं पे डिस्प्ले हो जाए, तो उस केस में आई विल राइट प्रिंट हेलो एंड आई विल मेंशन दैट एंड द लाइन विद स्पेस ओनली, नॉट न्यू लाइन. By default, line ends with new line. So if you want to change this, you can mention end equal to space. Okay, this was about to display anything. Now we will go to Python basic fundamentals. Python programming fundamentals. In Python programming fundamentals, first we will see Python character set. Python character set. What all is included in Python characters? जो Python की लैंग्वेज हम लिखेंगे उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउड है? लेटर्स A to Z,
small a to z, numbers 0 to 9, all special characters present on keyboard. Okay, space bar. All Unicode characters also are allowed in Python. ये तो सारा कुछ allowed है. After that we will see tokens. What are tokens in Python? Token is the smallest element. सबसे छोटा एलिमेंट होता है पाइथन में टोकन. ओके, अब टोकन के बहुत सारी कैटेगरीज हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स मीन्स वेरिएबल्स. You can also call them as variables. Like जैसे x equal to 1 तो x is a variable, a equal to 4 a is a identifier variable. Okay, तो ये जो वेरिएबल आप रखते हो, वेरिएबल का नाम हमेशा कैरेक्टर से शुरू होता है. इसमें कोई भी वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता. रिजर्व्ड वर्ड, जैसे आपने रिजर्व्ड वर्ड मतलब जो पाइथन ऑलरेडी यूज़ कर रहा है वर्ड, लाइक प्रिंट. Print is a reserved word. Reserved word are not used as identifiers. कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होता. सिर्फ देर इज़ ओनली वन स्पेशल करेक्टर विच इज़ अलाउड एज आइडेंटिफायर नेम, दैट इज़ अंडरस्कोर. अंडरस्कोर का एक साइन होता है, दैट इज़ ओनली अलाउड इन द नेम. ठीक है, एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट वैलिड, सो दिस इज़ वैलिड. This is not valid because special characters are not allowed. This is also not valid because identifier cannot start with the number. Okay, like this. So you have to follow the rules while declaring the name of the variable. So next is, first category was identifier, another is keywords. Keywords, any reserved words by Python, like I have told you earlier also, print. Reserved words cannot be used as identifier. These are called keywords. Third is literal. Literals, any fixed value, like a में अगर मैंने 4 डाला तो 4 is fix, आपको उसको a में डाल रहे हो, so this is a numeric literal. ठीक है, like 4 is a number literal, 8 is a number, any number is a numeric literal. Any decimal number is a float literal. फ्लोट बोलते हैं उसको, फ्लोटिंग लिटरल. डेसिमल नंबर्स को क्या बोलते हैं पाइथन में? फ्लोट. होल नंबर्स को क्या बोलते हैं? इंटीजर. ठीक है, और बुलियन. बुलियन मीन्स ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स दो ही होते हैं बुलियन लिटरल्स. बुलियन मीन्स या हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स. स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग लिटरल एनीथिंग डबल रिटन इन डबल कोट्स. जो भी स्ट्रिंग होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक हेलो, एनीथिंग विच इज़ रिटन इन डबल कोट्स इज स्ट्रिंग लिटरल. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स आर ऑल्सो टोकन्स. हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, तुम्हें पता है ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड. ये होता है परसेंटेज. यहाँ पर होता है रिमाइंडर के लिए. रिमाइंडर अगर आपको फाइंड आउट करना हो, ठीक है, अगर आपने पावर फाइंड आउट करनी हो, डबल स्टार और डबल स्लैश इंटीजर डिवीजन के लिए. एग्जांपल दे देती हूँ मैं. 5/4 it will give you 1 point, okay, 2, 1.25. if I use double slash then it will give me 1 only. this is called integer division. whole number देता है ये, decimal portion नहीं देता. ठीक है, so this is the difference. same way if I write 2 raised to power 3 means 8 power. okay, power के लिए यूज होता है. रिमाइंडर, if I write 5 raise 3 तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 is रिमाइंडर. ओके, तो these are the different operators which we can use.
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक के बाद हम जाते हैं, अरिथमेटिक मैथमेटिकल हो गए, रिलेशनल जो दो के बीच में रिलेशन बताते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड डबल इक्वल्स टू फॉर चेकिंग इक्वालिटी। ठीक है, लाइक इफ आई एम राइटिंग a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 9, a ग्रेटर देन b, this is, it will give you boolean value, either it is true or false, so it is false, so it will give you boolean। तो ये ऑपरेटर क्या चेक करता है कि ये बड़ा है या छोटा है, ऐसे ये उल्टा लेस देन वाला, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड दिस चेक्स इक्वालिटी। if I write a double equals to b, means I am checking whether value of a is same as value of b, it will give you true or false depending on the values of a and b। okay, another is shorthand ऑपरेटर्स। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं उनके साथ आप इक्वल टू लगा सकते हो। ये कैसे यूज़ करते हैं, जैसे x इक्वल टू 4, x प्लस इक्वल टू 3, इट मीन्स x इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो x इक्वल टू एक्स प्लस 3 को आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। लाइक दिस यू कैन यूज ऑल दिस 7 ऑपरेटर्स एज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 होते हैं, एंड, और, नॉट। एंड क्या करता है, दो एक्सप्रेशंस को चेक करता है। सपोज वैल्यू ऑफ a इज 4 एंड चेकिंग अगर मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा तो क्या होगा, मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे क्या a की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, यस। क्या a की वैल्यू 1 से भी ज़्यादा है, यस, तो आंसर विल बी ट्रू। एंड क्या करता है, एंड दो एक्सप्रेशंस को चेक करता है, और अगर दोनों ट्रू हो तो एंड क्या होता है, ट्रू। और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं या, दोनों में से एक ट्रू हुआ तब और रिजल्ट ट्रू देता है। लाइक इफ़ आई राइट a ग्रेटर देन 3 और a ग्रेटर देन 7, नाउ दिस इज रॉन्ग बट दिस इज राइट, सो और विल गिव यू ट्रू। बट इन केस ऑफ एंड इट विल गिव यू फॉल्स, बिकॉज एंड को दोनों ट्रू चाहिए तभी वो ट्रू देता है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो इट विल गिव यू फॉल्स। और के केस में दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया देन इट विल गिव यू ट्रू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और नॉट मीन्स उल्टा, नॉट a ग्रेटर देन 3, a की वैल्यू क्या है 4, ट्रू है ये, और नॉट उसको उल्टा करके इट विल गिव यू फॉल्स। नॉट कोई भी साथ में रिजल्ट होता है उसको उल्टा करके देता है, नॉट मीन्स रिवर्स। ओके, सो दीज वर द ऑपरेटर्स। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सपोज आपने दिस, ओके, वन ऑपरेटर वाज लेफ्ट इक्वल टू, आप लिखते हैं ना x इक्वल टू 4, तो x में क्या चला जाता है 4, तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिससे आप वैल्यू असाइन करते हो वेरिएबल को। ठीक है, नाउ x इक्वल टू 4, इट मीन्स x में कौन सी वैल्यू चलेगी, नंबर वैल्यू। तो x किस टाइप का वेरिएबल है, x एक इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा, मीन्स इट कैन स्टोर एनी नंबर। ओके, वैसे ही अगर मैं लिखूँ x 4.5, तो x किस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, फ्लोटिंग नंबर्स। इट कैन, फ्लोटिंग नंबर वेरिएबल मीन्स इट कैन स्टोर अ डेसिमल नंबर। ओके, हमारे ऐसे ही हमारे पास जैसे नंबर्स फ्लोट नंबर होते हैं, वैसे ही हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं। लाइक s इक्वल टू माई वर्ल्ड, तो माई वर्ल्ड इज़ अ स्ट्रिंग जिसके आसपास सिंगल कोट्स होते हैं, डबल कोट्स, उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स।
or alphabets. My world is a group of characters, so I am storing this string in S. तो किसी भी स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में इनक्लोज करके लिखोगे तो दैट विल बिकम अ स्ट्रिंग. अगर आप चाहते हो कि 3-4 लाइंस लिखनी है और वो पूरी एक ही बार में स्ट्रिंग में हो तो यू कैन स्टार्ट यूज़ सिंगल कोट लाइक S इक्वल टू दिस इज माई वर्ल्ड. सो आई हैव रिटन 2 लाइन्स और ट्रिपल कोट से शुरू की, ट्रिपल कोट से ख़त्म की, तो दीज 2 लाइन्स विल बी स्टोर्ड इन एस. सो दिस इज़ द वे टू स्टोर मल्टीपल लाइन्स इन अ वेरिएबल. ओके, नाउ एस्केप सीक्वेंस. एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस हमारे पाइथन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे न्यू लाइन, जैसे आप एंटर की दबाते हो वैसे ही अगर आपने कहीं पे चाहते हो कि न्यू लाइन आ जाए पाइथन में तो वो यूज़ /n. /n इज़ फॉर न्यू लाइन. ओके, वैसे ही अगर मैं लिखूँगी प्रिंट हेलो, अगर मैं चाहती हूँ डबल कोट्स भी मुझे डिस्प्ले करने हैं तो जब मैं इसको रन करूँगी तो एरर आ जाएगा. एरर कहेगा कि तुमने यहाँ से डबल कोट्स शुरू किए, यहाँ पे ख़त्म किए. वो ये नहीं समझेगा कि इन डबल कोट्स को मैं डिस्प्ले कराना चाहती हूँ. सो टू अचीव दैट टास्क आई विल यूज़ स्लैश. स्लैश विल override the special meaning of this double quote and it will treat it as normal character. तो इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो डबल कोट्स ABC. ठीक है, और इसका क्या आएगा? एरर. सो slash is called escape sequence. /n is for new line. /a जब /a लिखोगे तो एक CPU में से बीप की साउंड आएगी, बीप की साउंड करके. ओके, और एक होता है नन. A इक्वल टू नन मतलब A में कुछ भी नहीं है. नन इज़ अ कीवर्ड, स्पेशल वर्ड. A इक्वल टू नन मीन्स A में कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो आप कोई भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करते हो, 1, 1.5, एनी स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स में इनक्लोज किया हुआ कुछ भी. तो जब आप आपने देखना कि A की डेटा टाइप क्या है तो यू कैन राइट प्रिंट टाइप ऑफ A. इट विल डिस्प्ले द डेटा टाइप ऑफ A. ठीक है, तो टाइप पता चल गई. अगर आपने वैल्यू दिखानी है A की क्या वैल्यू है तो सिर्फ आप A लिखोगे. ओके, नाउ पाइथन आल्सो अलाउज टू असाइन वैल्यूज मल्टीपल असाइनमेंट्स आर अलाउड. लाइक अगर आपने एक ही लाइन में x और y दोनों को इनिशियलाइज करना है देन यू विल राइट दिस. x में 4 चला जाएगा, y में 5 चला जाएगा. यू कैन ऑल्सो राइट x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू 4. तो सब में क्या चला जाएगा? 4. सो दिस इज़ द वे यू कैन डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स इन 1 लाइन. ओके, नाउ देयर इज टाइपकास्टिंग मीन्स conversion from one type to another. Like A equal to 4. अब डबल कोट्स लगा दिया 4 के आसपास तो क्या बन गया? फॉर स्ट्रिंग. अगर मैं सिर्फ A इक्वल टू 4 लिखती तो क्या बन जाता है? ये नंबर. सपोज़ मैंने क्या किया, मेरे पास ऐसे 2 वेरिएबल हैं A1 A2. एक में 4 है एक में 9 है. मैंने इन दोनों को सम करना है. प्रिंट A1 प्लस A2 इट विल गिव मी 49. लेकिन मुझे इनको किसी तरह नंबर में कन्वर्ट करना है और मैंने डबल कोट्स भी नहीं हटाने. तो देयर इज़ अ फैसिलिटी इंट. जैसे प्रिंट को मैं बार बार फंक्शन बोल रही हूँ क्योंकि प्रिंट के आगे 2 ब्रैकेट्स हैं. ऐसे इंट के आगे भी 2 ब्रैकेट्स होती हैं. ठीक है, int is also is a function to convert anything to number. So here I will write 4.
तो 4 जिसके आसपास डबल कोट्स था, स्ट्रिंग था, उसको नंबर में कन्वर्ट करके उसने A1 में डाल दिया। सेम वे 9 को कन्वर्ट करके A2 में डाल दिया। प्रिंट A1 plus A2. Now it will display 13 on the screen because it has converted the string into number and store in A1. नंबर को नंबर से ऐड करोगे तो सम अप करता है ना, ठीक है। सो इंट इज़ अ वे, इंट फंक्शन, तो क्या हमने इससे निकाला कि इंट फंक्शन इज़ अ फंक्शन टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू इंटीजर। Same way float is a function string to decimal number। वैसे अगर आपने किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो देन वी हैव अ फंक्शन स्ट्रिंग str। किसी नंबर को एनी नंबर आइदर डेसिमल और होल नंबर टू स्ट्रिंग के लिए str फंक्शन, ठीक है। अगर आपने सपोज़ आपको पता है कीबोर्ड में आपके पास बहुत सारी कीज़ होती हैं, हर की एक वैल्यू होती है, नंबर वैल्यू जो इंटरनली CPU रखता है। अगर आपको किसी नंबर की करैक्टर वैल्यू देखनी है तो वो होता है CHR फंक्शन। एग्जांपल जैसे कैपिटल ए की होती है 65, ठीक है। इफ़ यू विल राइट 65 इट विल गिव यू कैपिटल ए। हर एक कोई भी नंबर डाल के देखो, कोई ना कोई करैक्टर ज़रूर दिखाएगा, ठीक है। ओके, अब हमने ऑपरेटर्स भी कर लिए। हर ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंस होती है, तो प्रेसिडेंस आपको ज़रूर याद रखनी है क्योंकि वो एग्ज़ाम में आपको आउटपुट में हेल्प करेगा। प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस में पता है, पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसके बाद पावर, उसके बाद नगेशन। जैसे किसी a इक्वल टू -4 तो हियर इट इज़ नगेशन, ओके। फिर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, दीज ऑल हैव सेम प्रेसिडेंस, देन प्लस माइनस, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। हमने रिलेशनल ऑपरेटर किए थे ऊपर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वहाँ, और डबल इक्वल्स टू। एक और ऑपरेटर हमारा रह गया नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लाइक 10 नॉट इक्वल टू 11, so it will give me true, okay। So we have done logical operator, shorthand operators also. Now one operator was left, membership operator, like hello. If I say he in hello, यानी क्या he hello में है, it will give you true। If I read am in apple, it will give me false because it is not, am apple में नहीं होता। So these are called membership operators। in उसी का उल्टा, in not in, not in उसी का उल्टा, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग जैसे हम केक की स्लाइस लेते हैं वैसे स्ट्रिंग की स्लाइस, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग को पार्ट्स में, टुकड़ों में डिवाइड कर देना। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, इसमें कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम पांच करेक्टर्स को एक पोजीशन मिलती है, वो पोजीशन होती है शुरू 0 से, ठीक है। सपोज़ ये है एस में, एक वेरिएबल में, सपोज़ आई वांट टू गेट ही, मैं चाहती हूँ किसी तरह मैं ही एक्सट्रैक्ट कर लूँ इस स्ट्रिंग से। सो आई विल राइट 0 पोजीशन से लेकर 2 तक, 2 विल बी एक्सक्लूडिंग, 2 कभी भी नहीं आएगा, 1 तक आएगा। लास्ट पोजीशन एक्सक्लूडिंग होती है, तो 0 और 1, इट विल गिव यू
he. Okay, so this is string slicing, we will do in detail. ओके नाउ यू आप हमने आउटपुट के लिए देख लिया प्रिंट यूज़ होता है। ऐसे ही हमारे पास इनपुट के लिए, जैसे हमने डिस्प्ले कुछ कराना है स्क्रीन पे तो हम प्रिंट यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर आपने कुछ यूज़र से इनपुट लेना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन। अगर यूज़र को मैसेज भी तो दोगे ना कि क्या एंटर करे, एंटर एनी वैल्यू, ठीक है, प्रिंट एक्स। जब आप ये एग्जीक्यूट करोगे तो जैसे ही आपका ये एग्जीक्यूट होगा इट विल आस्क द यूज़र टू एंटर सम वैल्यू। रन करोगे उसके बाद वही वैल्यू जो भी यूज़र एंटर करेगा वो डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे। नाउ नेक्स्ट आर कमेंट्स। देयर आर कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। जो भी आप कमेंट्स लिखते हो ना पाइथन उसको देखता नहीं है। दीज आर जस्ट फॉर कोडिंग पर्पज़। तो दो तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट। जिस भी लाइन के आगे आपने हैश लिखा है तो वो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो दिस प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड बाय मी ऑन दिस डेट, एनी इन्फॉर्मेशन यू वांट टू गिव अबाउट द प्रोग्राम। उसके आगे हैश लगा दोगे तो दैट लाइन विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, उसमें कोई एरर वगैरह नहीं दिखाएगा। एंड मल्टीपल के लिए 3 बार डबल कोट्स, ठीक है, ट्रिपल कोट्स आपको यूज़ करने हैं और ट्रिपल कोट्स से ही ख़त्म होगा वो, ठीक है। हियर यू कैन राइट कमेंट। ओके, so these were the very basic fundamentals in Python.